welcome in this live session. So now today I will give you some brief introduction of labeling, and in the next lecture, maybe in this lecture also, and if this lecture, if I will not able to complete the numerical problem, so we will make some new videos for to solve some number of problems of the labeling. So labeling is very important in the surveying. In the surveying, what we do, if we have to know the elevation of particular, if we are going to, this is the building and this is the ground level. So if we know the particular height of this building, if the number of floors above this building, so if we know the elevation of this building with respect to proper mean sea level, which is given by the Survey of India, सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है कि हमारी पूरी कंट्री में क्या करता है, इन पर्टिकुलर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के या 100, वैसे तो 100 किलोमीटर स्क्वायर की डिस्टेंस के बाद क्या करता है, एक बेंच मार्क देता है. तो बेंच मार्क मीन्स द मीन सी लेवल. विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, इट इज द 19 years fluctuation of water level in the sea. ये क्या है, हमारे समुद्र का 19 ईयर का फ्लक्चुएशन नोट किया गया. बिफोर दैट द मीन सी लेवल ऑफ द होल वर्ल्ड इज कराची, Pakistan. So right now Pakistan is not comes over the India, so that's why we considered as a Bombay high, Mumbai port. तो हमने क्या मान लिया है, अपना मीन सी लेवल. सो इफ वी गोइंग टू डिस्कस, सो हम क्या करते हैं, अगर हमको लेट वी कंसिडर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ की जो सरफेस है वो क्या है, कर्वेचर है, उसकी शेप क्या है, कर्वेचर है. बट इन द सर्वेइंग द assumption, in the labeling we taken the assumption first is the survey is plane. सर्वे क्या है, प्लेन है. It means the curvature of earth and the geodetic in which the curvature of earth is not taken. So right now what we do, this is the surface of the earth. इस तरीके से हमारी कुछ क्या है, अर्थ है. So first of all, before knowing the mean sea level, with respect to mean sea level, a line is constructed over the earth. इसके चारों तरफ क्या है, ये एक लाइन है जिसको क्या कहते हैं, लेवल लाइन. अब लेवल लाइन की रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, हमको एक पर्टिकुलर फिक्स लेवल, मतलब हमको एक एलिवेशन मिल गया है. विद रिस्पेक्ट टू दिस लेवल इज कॉल्ड एज रिड्यूस लेवल. ठीक है, तो इसको हम कहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन सी लेवल से हम क्या कर रहे हैं, आरएल को फाइंड आउट करते हैं. सो दिस मीन सी लेवल इज दैट पॉइंट विच इज मेजर्ड फ्रॉम द 19 year of fluctuation of your sea. So this is the concept of labeling. So now if we talk about the labeling is done by the n number of instrument. First is theodolite, okay, dumpy label, auto label, and right now EDM is also used. So this is the n number of instrument which is used for the labeling. So right now if we talk about अगर हम बात करें कि लेबलिंग के मेथड कितने हैं, एंड द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज इन लेबलिंग.
So some terminology are given which is used in leveling. First is RL. If we know the RL of particular thing above the surface, that we can know the particular location and the elevation of that particular point. If so, right now first point is reduced level. So what is reduced level? ये reduced level क्या होता है? reduced level क्या होता है? ये क्या होती है? एक हाइट होती है आपकी प्रॉपर किसी फिक्स पॉइंट है. वो पॉइंट कौन सा होता है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बेंचमार्क. बेंचमार्क क्या होते हैं? ये फिक्स भी होते हैं और क्या आर्बिटरी भी हो सकते हैं. इसको हम अपनी लोकेशन मतलब अपने हिसाब से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं. इफ हमारे पास क्या है कि हम किसी नई साइट पे गए और वहां पे इफ यू डोंट हैव available and benchmark over there, so what we do, we can consider it as temporary benchmark at that particular location. So with the help of benchmark we can know the height of that particular thing. If we are going to, this is the instrument. So if we know the height of this particular point and height of the instrument, if we know the हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट कितने एबव है आपके ग्राउंड लेवल से, कितनी डिस्टेंस के ऊपर आपका इंस्ट्रूमेंट सेट है. सो दिस इज द बैक साइड एंड दिस इज द फोर साइड and maybe it can be intermediate side also if the slope is continuously decreasing or increasing, the n number of intermediate sides also available. But first before setting the instrument, what we should know, we should know the reduced level of that particular point. With the help of reduced level we can take over. यहाँ पे क्या कर देंगे हम, स्टाफ लगा देंगे. तो with the help of staff we can know the height of instrument with the help of back side. तो back side की सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट आपके सेट करने से पहले हमको जो पहली रीडिंग ली जाती है वो कौन सी होती है? बैक साइड. एंड द नेक्स्ट रीडिंग इज टेकन एज द इंटरमीडिएट साइड एंड फोर्थ साइड. विद अब अगर बात करें तो रिड्यूस लेवल की बात करें तो यू कैन राइट डाउन रिड्यूस लेवल, द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट with respect to either mean sea level or with respect to the fixed point known as the height of known height. ठीक है, अगर हम क्या है किसी भी लेवल की, अगर हमने पॉइंट की हाइट को मेजर करना है तो हाइट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेशन with respect to the MSL mean sea level or any fixed height. MSL और फिक्स्ड हाइट के रिस्पेक्ट में जो हमने हाइट मेजर की होती है उसको क्या बोलते हैं? RL. ठीक है, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बैक साइड. बैक साइड क्या होती है? अब बैक साइड वो साइड होती है जो क्या होती है आपके इंस्ट्रूमेंटल सेट करने पे जो पहली आपकी जो रीडिंग ली जाती है, पहली रीडिंग जो ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? बैक साइड बोलते हैं. ठीक है ना. सो बैक साइड इज बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड. तो बैक साइड इज द first reading taken over the surface before setting the instrument. अगर हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करने से पहले जो रीडिंग ली जाती है, मतलब जो बैक फर्स्ट रीडिंग जो आपकी ली जाती है वो क्या होती है? सो बैक साइड इज, दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट एंड द फर्स्ट रीडिंग इज टेकन इज, दैट इज बैक साइड, एंड दिस इज योर RL with respect to mean sea level. So RL is given in the question. Let's suppose this is 100. So if this height is 1.5
5 meter. So what is the height of instrument? So height of instrument is RL of point, this is the point A, so RL of point A plus backside, so you will get the height of instrument. So this is the height of instrument which can be measured with the help of backside and reading with the help of RL also. So this is the backside. Next point is intermediate side or foreside. So this backside is the backward reading, in the direction, backward direction, anti-clockwise, opposite. If this is the instrument, so we have to turn like that. This is the backside. This is the backside. This is first of, and if we are going to measure the foreside is the forward, means हमको आगे को बढ़ना है, ठीक है ना, तो आगे को बढ़ना है. This is the second point is intermediate side. So इंटरमीडिएट साइड क्या हो गई आपकी? इंटरमीडिएट साइड वो होगी जो क्या होगी आपके फोर साइड और बैक साइड के बीच में की जो जितनी भी सारी रीडिंग आई, these are the points which comes in between the foreside and बैक साइड. जो पॉइंट आपके क्या आएंगे फोर साइड एंड बैक साइड के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे? इंटरमीडिएट साइड. एंड थर्ड पॉइंट इज, थर्ड टर्मिनोलॉजी इज foreside. So foreside is, this is the reading which is taken in the forward direction from the इंस्ट्रूमेंट से जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी जो रीडिंग, जितने भी रीडिंग ली जाती है वो क्या होती हैं? फोर साइड होती हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट द मेथडोलॉजी विच इज यूज्ड इन लेबलिंग, सो दो मेथड आप यूज करते हैं लेबलिंग में. फर्स्ट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड सेकंड इज राइज एंड फॉल मेथड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन rise and fall method and height of instrument method लगभग सेम ही है, बट समथिंग क्वाइट डिफरेंट इज व्हाट. जो आपका अर्थमेटिक चेक होता है, अर्थमेटिक चेक जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में होता है, उसमें क्या होता है? समेशन ऑफ लास्ट RL माइनस समेशन ऑफ फर्स्ट RL equals to summation of back side minus summation of foreside. So this should be equal. If this is not equal, so there will be some error over there. Error आ जाएगा. So if there is error, so what we have to do? अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? लेबलिंग फिर से करनी पड़ेगी. So this error is due to some reason which is we can rectify with the help of these error are combined error due to refraction or due to curvature. So इसको तो हम आगे पढ़ लेंगे, but right now if we talk about these two methodology, so bifurcating these two terminology, इसको हम अलग अलग थोड़ा इसके पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं इनको लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना. So with the help of these point you can manage how rise and fall method is quite different to the height and instrument method. लगभग सेम ही है, बट अगर आपको फाइंड आउट करना है
तो with the help of this methodology you can find out. So if we talk about rise and fall method, so ऐसे कर लेते हैं ना, इसको दो पार्ट में यूं डिवाइड कर लेते हैं. With the help of these, first is rise and falling, okay, rise and fall method, and here is height of instrument or height of collimation, ठीक है ना. दोनों ही सेम है, टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है, नाम मतलब दोनों का एक ही आता है, ठीक है ना. तो अर्थमेटिक चेक जो आपका राइज एंड फॉल मेथड में होगा, तो अर्थमेटिक चेक ऑफ राइज एंड फॉल मेथड इज दैट इज समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल्स टू समेशन ऑफ लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, summation of last RL minus summation of first RL, that should be equals to summation of rise minus fall, summation of rise minus summation of fall. So if this is right, so there is no error. For that height of instrument method, summation of back side minus summation of four side equals to summation of last RL minus summation of first RL. So you can get the values of, if these should be equivalent. So this is the difference between the rise and fall method. And second terminology is that check for intermediate reading is done using rise. तो अगर आपको इंटरमीडिएट रीडिंग के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, किसकी, राइज एंड फॉल मेथड की. बिकॉज इंटरमीडिएट रीडिंग की अगर आपको रीडिंग को आपने अगर चेक करना है, तो व्हाट वी डू, इंटरमीडिएट रीडिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल. सो आपकी इंटरमीडिएट रीडिंग की क्या हो जाएगी, करेक्टिविटी कर सकते हैं. इसमें सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सेकंड पॉइंट इसमें ये है, इसमें रिडक्शन इन इजियर इन इट. अब आपको क्या है इसमें, रिडक्शन इज इजियर इन दिस मेथड, इज इन इट, ओके. एंड नेक्स्ट इज, ये थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा है, दिस मेथड इज लेस टाइम टेकिंग, but accuracy of rise and fall method is more than height of instrument method. And third point is comes here, if we have next and third point, this is most precise method, less precise than rise and fall method. So this is the difference between rise and fall and height and instrument method. Right now if we talk about, अगर हम बात करें rise and fall method की, so in rise and fall method and height and instrument method एक पॉइंट आता है आपका, क्या आता है, पॉइंट आता है, दैट इज चेंज पॉइंट. चेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमको क्या करना पड़ता है, अगर देयर इज सम इंस्टेंट राइज, अगर क्या है इंस्टेंट राइज है, अगर आपका जो एरिया स्लोप ग्राउंड का क्या था, ये चल रहा था, इंस्टेंट फॉल, अगर इंस्टेंट फॉल आ गया, एंड इफ योर एरिया ऑफ मेजरमेंट जहां पे आप क्या कर रहे हो, लेवलिंग कर रहे हो, अगर वहां पे क्या है इंस्टेंट राइज और इंस्टेंट फॉल कम्स, तो वहां पे क्या करना पड़ता है आपको, इंस्ट्रूमेंट
आपका जो स्टाफ होता है वो लगभग 4 मीटर का है. If we have a staff is 4 meter, and if we are going to measure, and this height is 1.5 and this height is 2.5, so now this height is 5.3 something. So अब इस height को हम क्या है, with the help of this staff 4 meter staff we cannot measure. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. तो इफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज शुड टू बी चेंज एट पर्टिकुलर लोकेशन वेयर द राइज एंड फॉल, इंस्टेंट राइज और फॉल अगर किसी पॉइंट में होता है तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, अपना इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट सेटअप को उठा के और पर्टिकुलर नए लोकेशन पे क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है. तो विद द हेल्प ऑफ लेवल, लेवल इज व्हाट, लेवल क्या होता है, लेवल एन नंबर ऑफ लेवल ओवरकम. अब बहुत सारे लेवल आते हैं, फ्लाई लेवल, ऑटो लेवल. तो इसमें अगर आपको क्या है, हॉरिजेंटल मेकओवर, हमको क्या करना पड़ता है कि हमारा जो सरफेस है, पर्टिकुलर सरफेस है, लेवलिंग शुड बी हॉरिजेंटल विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेशन और गिवन डेटम. ठीक है ना, जो आरएल आपको गिवन है उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर दिस शुड बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस शुड बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होने चाहिए. So that's why the plane should be horizontal. So with the help of level, split level, okay, इसमें क्या होता है, लेवल के अंदर क्या होता है, स्प्रिट भरा होता है. विद द हेल्प द बबल शुड बी कम इन सेंटर. सेंटर पे अगर बबल आ गया तो इट मीन्स योर लेवल इज हॉरिजेंटल, प्रॉपर क्या हॉरिजेंटल है. तो इसके अंदर स्प्रिट भरा होता है. विद द हेल्प ऑफ दिस लेवल वी कैन डू लेवल योर ट्राइपॉड एंड whatever the instrument you are using. So this is enough for this video, and in the next video we will discuss about the your topic is height of instrument method, and we will deal an numerical problem over that particular topic. So thank you.